if you look at the economic statistics of the Common Era, India tops the world with 34% of world GDP, China next. In the year 1000, if you draw the economic statistics, India still leads with 28%. In the year 1400, India again leads. In the year 1500, India again leads. In the year 1600, China overtakes India. In the year 1700, India overtakes China. UK, one of the last with 1.8% of the world GDP. America with 0.1% of world's GDP. He said these are the structure of the world economy in 1750. And India went down from 24.5 in 1750 to 20 in 1800, 17 in 1830, 8 in 1880, 1.7 in 1900. In just 150 years, the Indian economy, the Indian polity, the Indian society, the Indian civilization crashed. And in the same period, UK and US, which had just 2% between them in 1750, their share went up to 41% in 1900. This completely transformed, paradigm shifted, transferred the power, economic power, political power, cultural power, civilizational power from Asia to the West. And Angus Madison came to the conclusion that Indian economic crash occurred essentially and wholly because of colonial exploitation. It is very likely that in the middle of the 19th century, the average standard of living in Europe was a bit lower than the standard of living of the rest of the people in the world. This shook the West. The West was always superior. How is it that the Western researchers have shown that Asia was a mighty economic giant and India was an economic giant? And so this job was given. Even London Economist noted it in 1990. Then Angus Madison, the greatest economic historian ever. Why I am mentioning this is that the tallest educational institution of India had no understanding of Indian economic history, which is now proved. Actually, if you want to look at the Angus Madison's work, he is known as World Economic History, a Millennial Perspective. It is available on the internet of OECD even today. You know what is OECD countries? It is 26 richest countries in the world, and its statistics are most trusted and relied upon. It is that OECD forum which has declared this as the most authentic economic history of the world. In the 17th century, with India holding the largest share of the world economy at the height of the Mughal Empire. How exactly did India go from being the world's largest economy with the Mughal Empire of the 18th century? Das positions Mughal India as having a developed banking system, merchant capital, a financial surplus, a skilled artisan class, and large exports. India as a country may have been prosperous, but the average person, by comparison to his or her 18th century European counterpart, was not. The British did not come to power overnight in India. They were one of many European powers, not to mention large Indian kingdoms. The two key breakthroughs for the British occurred in the years 1757 and 1764. From then on, the British power and influence in India grew and grew. I now want to look at the 17th century, as this was the last time that India had the world's largest economy. On this map, you'll see the growth of the Mughal Empire in the 16th and 17th centuries, reaching its greatest extent at the death of Aurangzeb in 1707. As it happens, until diamonds were discovered in Brazil in the 18th century by the Portuguese, and southern Africa in the 19th century, all the diamonds in the world up until that point had come from India. They were Muslims from Central Asia and came from fierce stock. Their founder Babur, who seized control of northern India in 1526, claimed to be descended from the legendary 14th century Timur, also known as Tamerlane, on his father's side, and the 13th century great Mughal himself, Genghis Khan, on his mother's side.
The Mughals didn't practice primogeniture, where the eldest son would inherit. The golden age of India, the Mughal era. Kings ruled their own independent kingdoms, the emperors were just, the land was lush and people hard-working. And India was the richest country in the world. Until the British came, plundered the country and left it in ruins. First time in history, the entire land was under one ruler. The Mughal Empire is when Akbar, Tipu Sultan, Babur were emperors of the time. India was responsible for 25% of the world's GDP. That's right, 25%. Right before the British colonized us. Where would India be today if the British did not step into India? The British came to one of the richest countries in the world, accounting for 27% of global GDP in 1700, 23% in 1800, and over 200 years of exploitation, depredation, loot and destruction reduced it to a poster child for third world poverty, with just over 3% of global GDP, 90% of the population living below the poverty line when the British left in 1947, a literacy rate, you speak of education, a literacy rate below 17%, and a life expectancy of 27. The growth rate of British India from 1900 to 1947 was 0.001%. क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं होता तो क्या होता? ये एक क्वेश्चन है कि क्या होता, और जिसका जवाब हमें कभी नहीं पता होता कि असल में होता क्या। लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक होता तो दुनिया पर उसका क्या असर होता। तो मान ले कोई भी विभाजन नहीं था, हिंदू मुस्लिम तनाव को अलग रखते हुए हम उसकी पॉजिटिव साइड को देखते हैं और यह कैसे दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद रहता। सबसे पहला, अगर भारत और पाकिस्तान एक होता तो बांग्लादेश नाम का कोई देश ही नहीं बनता, और बांग्लादेश के लोगों की इंडिया में आज जो घुसखोरी हो रही है वो भी नहीं होती, जिस वजह से बिहार और अरुणाचल प्रदेश में आज जो दंगे हो रहे हैं वो भी नहीं होते। दूसरा, अगर आबादी की बात करें तो भारत सबसे ऊपर होता, क्योंकि साल 2017 में भारत की कुल आबादी 135 करोड़ के आसपास है, पाकिस्तान की कुल आबादी 20 करोड़ के आसपास है और बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिलाकर उस भारत की आबादी 170 करोड़ के आसपास होती, यानी कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। तीसरा, अगर ऐसा होता तो भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे मजबूत क्रिकेट टीम होती, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा होता। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज, मोहम्मद आमिर, शहीद अजमल, शकीब उल हसन जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हमारे पास, तो क्या हमें कोई हरा सकता? चौथा, साइबर सिक्योरिटी आज दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान के पास जो खतरनाक हैकर्स है वो, और भारत के पास जो जाबाज प्रोग्रामर है वो अगर एक साथ मिलकर काम करते तो क्या होता? तो दुनिया के कोई भी हैकर्स भारत की साइबर सिक्योरिटी को तोड़ नहीं सकते। पांचवा, ऐसा होने पर कश्मीर की बात ही कुछ और होती, क्योंकि पुरानी किताबों में कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता था। अगर भारत पाकिस्तान एक होता तो कश्मीर आज भी स्वर्ग ही होता। और एशिया के जो लोग गर्मियों में स्विट्जरलैंड चले जाते हैं वो लोग गर्मियां काटने के लिए कश्मीर जाना पसंद करते, जिस वजह से कश्मीर भारत का सबसे अमीर स्टेट होता, क्योंकि कश्मीर खूबसूरत वादियों से भरा कुदरत का घर है। छठा, वैसे देखा जाए तो आज भारत की आर्मी बहुत ही ताकतवर है, लेकिन दोनों देशों की आर्मी एक साथ होती तो सबसे ज्यादा आर्मी वाला सैन्य और सबसे बड़ा आर्मी सैन्य वाला देश भारत होता। चाइना, अमेरिका और रशिया जैसे बड़े बड़े देश हमेशा 2 कदम की दूरी बनाए रखते भारत की इस ताकतवर आर्मी से। पर अगर ऐसा होता तो आज का भारत या आजादी से पहले का भारत, जिसमें कई अलग अलग राज्य थे और आज भी है, जिनकी अलग अलग भाषाओं से हर राज्य विभाजित है, लेकिन देशभक्ति के मामले में सभी राज्य एकजुट है, जिसे हम संयुक्त भारत
या आजादी से पहले का होता तो उसे अखंड भारत या प्राचीन भारत कहते हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि किसी भी देश की या राज्य की भौगोलिक सीमाएं या उनकी बाउंड्री कभी एक समान नहीं रही। वे हमेशा बदलते इतिहास के साथ बदलती रहती है। समय जैसे जैसे आगे चलता जाता है वैसे वैसे उनकी भौगोलिक सीमाएं भी छोटी मोटी होती रहती है और कुछ ऐसा ही हमारे भारत के साथ भी हुआ है। आप इस इमेज को देखिए, यह है हमारा प्राचीन भारत जो आज समय के साथ कई अलग अलग टुकड़ों में बंट चुका है। साल 1747 में अफगानिस्तान अलग हुआ, साल 1768 में नेपाल अलग हुआ, साल 1907 में भूटान अलग हुआ, साल 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, साल 1948 में श्रीलंका अलग हुआ और साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश अलग हुआ। इसके अलावा कई और देश भी शामिल हैं। किस तरह से हमारे अखंड भारत को तोड़ा गया था। तो ये था हमारा अखंड भारत जो आज छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर रह गया। तो सवाल ये है कि अखंड भारत आज भी होता तो क्या होता, इसकी रहस्यमय सीमा क्या होगी, इसके फायदे क्या होते, इसके नुकसान क्या होते, इस देश की टोटल पॉपुलेशन कितनी होती, ग्लोबल इकोनॉमी कितनी होती, इस बड़े देश की आर्मी कितनी बड़ी होती, इन देशों के बीच आपस में कितने युद्ध हुए जिनमें कितने लोगों की जानें नहीं जाती, कश्मीर की क्या स्थिति होती। ऐसे कई सवाल पैदा होते हैं इस एक बड़े सवाल से कि अखंड भारत आज भी होता तो क्या होता, और उन सभी सवालों के जवाब भी जानेंगे इस वीडियो में। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, ये सातों देश आज भी एक होते तो अखंड भारत की कुल आबादी कितनी होती। साल 2016 में भारत की कुल आबादी 132 करोड़ से ज्यादा है, पाकिस्तान की 19 करोड़ से ज्यादा है, अफगानिस्तान की 3.5 करोड़, बांग्लादेश की 16 करोड़, नेपाल की 2 करोड़ 90 लाख, भूटान की 8 लाख है और श्रीलंका की 2 करोड़ 8 लाख है। तो कुल मिलाकर अखंड भारत की कुल आबादी 175 करोड़ से भी ज्यादा होती, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अखंड भारत कहलाता। जैसे देश के पास बहुत बड़ा मानव संसाधन होता, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाते, जिससे देश की जीडीपी ज्यादा होती। अब बात करेंगे कि आज भी अखंड भारत होता तो कश्मीर की क्या स्थिति होती। वैसे जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एक राज्य है, पर आजादी से लेकर आज तक कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान लड़ते आए हैं, जिस वजह से आज कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। जिस एरिया को पाकिस्तानी लोग आजाद कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान कहते हैं, यानी कश्मीर का 35% हिस्सा आज पाकिस्तान के पास है, ये वाला। तो दूसरे हिस्से पर चाइना का कब्जा है, जिसका नाम अक्साई चीन है, जो 20% एरिया है, और बाकी जम्मू कश्मीर का 45% एरिया भारत के पास है। आजादी के बाद कश्मीर का इतिहास बहुत ही भयंकर हो गया। जिसके लिए कश्मीर जाना जाता था बिल्कुल उससे उल्टा हो गया। पुरानी किताबों में कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता था, और अखंड भारत आज भी होता तो कश्मीर शायद आज भी स्वर्ग ही होता। और एशिया के जो लोग गर्मियों में स्विट्जरलैंड चले जाते हैं वो लोग गर्मियां काटने के लिए कश्मीर जाना पसंद करते, जिस वजह से कश्मीर भारत का सबसे बड़ा प्रवासी राज्य होता, क्योंकि कश्मीर खूबसूरत वादियों से भरा कुदरत का घर है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर हजारों लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। मतलब कश्मीर को आज हम जिस नजरिए से देखते हैं बिल्कुल उससे विपरीत स्थिति होती कश्मीर की, यानी स्वर्ग। आज दुनिया की कुल जमीन में से 3% जमीन हमारे पास होती, जिसमें भारत की कुल जमीन 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पाकिस्तान की कुल जमीन 7,96,000 स्क्वायर किलोमीटर, अफगानिस्तान की कुल जमीन 6,52,000 स्क्वायर किलोमीटर, नेपाल की कुल जमीन 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर, और उतनी ही जमीन बांग्लादेश के पास है। भूटान की कुल जमीन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर और श्रीलंका के 65,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कुल मिलाकर अखंड भारत के पास 51,35,183 स्क्वायर किलोमीटर जमीन होती, यानी पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी बड़ा देश होता, जो रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना और ब्राजील के बाद दुनिया में 6ठा सबसे बड़ा देश कहलाता। आज इन सातों देशों में केवल जासूस और आतंकवादी ही ऐसे हैं जो कभी भी इन देशों में जाने के लिए सक्षम है, लेकिन अखंड भारत होने पर इससे उल्टा होता। आम जनता भी इन सातों देशों के अलग अलग जगहों पर जाने के लिए सक्षम होती, और वो भी बिना किसी रुकावट के। जैसे यदि आप पेशावर में बने बोटी कबाब को खाना चाहते हैं तो आपको पेशावर के लिए बस एक ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। यदि आपको कोलंबो में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने की आवश्यकता है तो आप सरकार से अनुमति लेने के बजाय सीधा बस से जा सकते, यानी आम जनता पूरे देश में स्थानांतरित करने में सक्षम होती।
कोस्ट लाइन यानी दरियाई सीमा, समुद्र तट, तो इसमें अखंड भारत के पास एक विशाल दरियाई सीमा होती जो पाकिस्तान के जीवानी से शुरू होती और बांग्लादेश से दक्षिण परा में खत्म होती। अगर उसकी लंबाई की बात करें तो अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान के पास कोई दरियाई सीमा नहीं है, पर पाकिस्तान के पास 1046 किलोमीटर की दरियाई सीमा है, भारत के पास 7000 किलोमीटर की, श्रीलंका के पास 1340 किलोमीटर और बांग्लादेश के पास 580 किलोमीटर की दरियाई सीमा है। तो कुल मिलाकर अखंड भारत के पास 9966 किलोमीटर की दरियाई सीमा होती। तो यहाँ पर नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान जैसे देशों को बहुत फायदा होता, क्योंकि उन्हें दरियाई सीमा मिलती जिससे वे दुनिया के देशों के साथ व्यापार कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर इस बड़ी दरियाई सीमा से अखंड भारत को एक अच्छा खासा फायदा होता, क्योंकि इस दरियाई सीमा पर कुल 13 बड़े बड़े पोर्ट यानी बंदर है, जिसमें भारत में 7, पाकिस्तान में 2, बांग्लादेश में 3 और श्रीलंका में 1, जहां से बड़ी मात्रा में माल सामान की हेराफेरी हो पाती। और इतनी बड़ी हेराफेरी करने के लिए बड़ी संख्या में व्यापारिक जहाज चाहिए। तो उसमें पाकिस्तान के पास 52 जहाज है, भारत के पास 1675 जहाज है, बांग्लादेश के पास 306 और श्रीलंका के पास 80 जहाज है। तो कुल मिलाकर 2100 जितने व्यापारिक जहाज अखंड भारत के पास होते। अब कोस्ट लाइन की बात आई है तो एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करना भी जरूरी है, सीपीईसी लाइन। चाइना के लिए सीपीईसी लाइन बहुत ही जरूरी है। चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर यह लाइन बनाई है, यानी यहाँ से शुरू होती है और सीधा चाइना के अंदर चली जाती है, जिसमें रोड और ट्रेन दोनों दौड़ती है। आज चाइना को इस लाइन की वजह से बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि वह सीधा पूरा अफ्रीका और इन एशियाई देशों के साथ समुद्री व्यापार कर सकता है और चाइना को भारत के इस बड़े समुद्र को भी पार नहीं करना पड़ता, जिससे चाइना का पैसा भी बचता है और समय भी। तो अखंड भारत आज भी होता तो इस देश की सरकार चाइना को ग्वादर पोर्ट लीज पर कभी नहीं देती, जिससे चाइना को भारत के इस विशाल समुद्र को पार करना पड़ता। इसलिए चाइना को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत बड़ा नुकसान होता। अंग्रेजों के लिए भारत और पाकिस्तान नक्शे पर महज एक लकीर थी, लेकिन जमीन पर विभाजन की यह रेखा पूरी मानव जाति के इतिहास की एक ऐसी अमानवीय और क्रूर घटना थी जिससे पूरी दुनिया की मानवता शर्मसार हो गई थी। यह बंटवारा महज 50 से 60 दिनों के भीतर लाखों लोगों का विस्थापन था, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लाखों लोग देश की सीमा के उस पार गए। बहुत कम समय में वहां रहने वाले लोगों को अपना घर-बार, जमीन, दुकानें, जायदाद, खेती सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना पड़ा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मानव जाति के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ था। यह संख्या तकरीबन 1.5 करोड़ थी, जिसमें 72 लाख मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और लगभग उतने ही हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। धर्म के नाम पर हुए इस बंटवारे में हजारों महिलाओं का अपहरण हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ, सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए और मानव जाति के इतिहास को शर्मिंदा कर देने वाले इस त्रासदी में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, जो एशिया के इतिहास का काला अध्याय है। उसके कुछ सालों बाद दूसरा बंटवारा हुआ, पाकिस्तान का। साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इस दौरान बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ जैसा भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान हुआ था, और इसी दौरान भी 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। विभाजन के इन दोनों काले अध्याय में सियासत ने अपनी ख्वाबों को तो पूरा किया, लेकिन धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भोले भाले इंसानों को हिंदू और मुसलमानों में बांटकर, जिसकी नफरत आज भी लोगों के दिल में है। यानी अखंड भारत होता तो एक काला अध्याय कभी नहीं लिखा जाता और धर्म के नाम पर लोग आपस में नहीं लड़ते, बल्कि साथ मिलकर रहते। जिस तरह से सभी धर्म के लोगों ने साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाया था, और शायद अखंड भारत दुनिया का एक लौता देश होता जहां सभी धर्म के लोग एक साथ सहज और शांति से रहते। अब बंटवारा हुआ और वो भी धर्म के नाम पर, तो दोनों देशों के बीच युद्ध तो होना ही था। आजादी के 2 महीने बाद ही पहला कश्मीर युद्ध हुआ, दूसरा 1965 में हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, तीसरा 1971 में हुआ जिसमें भी भारत और पाकिस्तान के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश। उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी कई सालों से यह सब चलता आ रहा है। तो इन सब युद्ध लड़ाइयों से हमारा कोई नाता न होता अगर अंग्रेजों ने अखंड भारत तोड़ा न होता। अखंड भारत होने पर ईरान हमारा पड़ोसी देश होता
यानी ऑयल की आयात करने में ज्यादा खर्च नहीं होता। उस पाइपलाइन की मदद से हम सीधा अपने देश में ऑयल ला पाते और शायद इससे आज पेट्रोल के दाम भी कम होते। अब सामान एक्सपोर्ट करने की बात करें तो आज भारत हर साल 464 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान 25 बिलियन डॉलर, अफगानिस्तान 0.3 बिलियन डॉलर, बांग्लादेश 37 बिलियन डॉलर, नेपाल 1 बिलियन डॉलर, भूटान 0.7 बिलियन डॉलर और श्रीलंका 11.8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। यानी अखंड भारत होता तो आज हम 540 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हर साल करते। तो उस हिसाब से पूरी दुनिया में अखंड भारत एक्सपोर्ट करने में 7वें नंबर पर होता। कुछ वैसे ही अखंड भारत के पास एक बहुत बड़ा रेल नेटवर्क होता जो काबुल से लेकर कलकत्ता और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के अलावा छोटे मोटे शहरों को जोड़ता। अगर उसकी लंबाई की बात करें तो पाकिस्तान में टोटल रेलवे कवरेज 7800 किलोमीटर का है, भारत में 64,000 किलोमीटर का, नेपाल में 60 किलोमीटर, बांग्लादेश में 2600 किलोमीटर, श्रीलंका में 1500 किलोमीटर का है, पर भूटान और अफगानिस्तान में है ही नहीं। तो अखंड भारत के पास कुल 75,000 से लंबा रेलवे कवरेज होता जो रशिया और चाइना से थोड़ा कम होता, क्योंकि इन दोनों के पास 85,000 से भी ज्यादा रेलवे कवरेज है। एयरपोर्ट में भी अखंड भारत काफी आगे होता, क्योंकि पाकिस्तान में कुल 151 एयरपोर्ट है, भारत में 346, अफगानिस्तान में 43, बांग्लादेश में 18, नेपाल में 47, भूटान में 2 और श्रीलंका में 19 एयरपोर्ट है। यानी अखंड भारत में टोटल 634 एयरपोर्ट होते, जो चाइना से तो ज्यादा है लेकिन रशिया से कम है। तो अखंड भारत होता तो इस बड़े देश में सभी धर्म के लोग रहते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब। इसके दो पहलू हैं, या तो सब साथ मिलकर रहते, या तो कोई नेता या पड़ोसी देश की सरकार इस अखंड भारत को तोड़ने के लिए किसी धर्म का इस्तेमाल करती, जिस वजह से आपसी लड़ाइयां होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती। जैसे आज के समय में कुछ नेता कुर्सी पाने के लिए लोगों को आपस में लड़ाते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। दूसरी ओर श्रीलंका के सिंहली और तमिल लोगों के बीच एक दूसरे के लिए बहुत नफरत है, शायद वो भी खत्म हो जाती या जैसी आज है उससे ज्यादा होती। यानी सिविल वॉर या आपसी लड़ाइयों का अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल है, पर एक साथ 175 करोड़ लोग रहेंगे और वो भी अलग अलग धर्म के, तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर शायद नुकसान होता, लेकिन आज के इस वैश्वीकरण के समय में एकीकरण फायदेमंद साबित होगा। पर यह तब हो सकता है जब धर्म या जाति के नाम पर आपसे लड़ाइयां ना हो। आज इंडोनेशिया मुस्लिम आबादी में 1 नंबर पर है, क्योंकि दुनिया के 12% मुस्लिम आबादी यानी 21 करोड़ मुस्लिम इस देश में रहते हैं। पर अखंड भारत होने पर पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी 19 करोड़, अफगानिस्तान की 3 करोड़ से ज्यादा, भारत में 18 करोड़ से ज्यादा, बांग्लादेश में 14 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम, नेपाल में 13 लाख से ज्यादा, भूटान में 1500 और श्रीलंका में 20 लाख से ज्यादा। यानी अखंड भारत की मुस्लिम आबादी कुल 54 करोड़ की होती। यानी अखंड भारत मुस्लिम आबादी में नंबर 1 पर होता। साथ ही हिंदू आबादी में भी जो 100 करोड़ से ज्यादा होती और सिख आबादी में भी नंबर 1 पर होता। सबसे पहले बात करेंगे इस बड़े देश की आर्मी की कि कितनी बड़ी आर्मी होती। तो आज अफगानिस्तान की सेना में 2 लाख नौजवान हैं, पाकिस्तान की सेना में 6,53,800 नौजवान हैं, जो पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है। इसके बाद भारत की सेना में 13,95,000 नौजवान हैं, नेपाल में 1 लाख है, बांग्लादेश में 2,05,000, भूटान में 16,000 और श्रीलंका में 2,03,000 है। यहाँ सिर्फ इन सभी देशों की एक्टिव आर्मी है, रिजर्व आर्मी को यहाँ पर नहीं गिना गया। उस हिसाब से अखंड भारत की टोटल एक्टिव आर्मी में तकरीबन 28 लाख नौजवान होते। यानी आज चाइना नंबर 1 पर है, क्योंकि उनकी आर्मी 21 लाख से ज्यादा है, तो उसकी जगह पर अखंड भारत नंबर 1 पर होता। परमाणु हथियार में इन 7 देशों में से सिर्फ 2 देश के पास ही परमाणु हथियार है, जिसमें भारत के पास 110 परमाणु हथियार और पाकिस्तान के पास 120 परमाणु हथियार है। यानी कुल 230 जितने परमाणु हथियार अखंड भारत के पास होते। उस हिसाब से चाइना जैसे देश भारत में घुसने की कोशिश तो क्या सपना भी नहीं देखते। इस तरह मिलिट्री टैंक में भारत के पास 4500 टैंक है,
पाकिस्तान के पास 2180 टैंक, बांग्लादेश के पास 534, श्रीलंका के पास 102, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान के पास एक भी टैंक नहीं है। तो उस हिसाब से अखंड भारत के पास 7300 से ज्यादा मिलिट्री टैंक होते हैं, यानी चाइना से थोड़े कम, क्योंकि उनके पास 7700 टैंक है। बिल्कुल वैसे ही एयरफोर्स में भी अखंड भारत काफी आगे होता। भारत के पास 2200 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर है, पाकिस्तान के पास 1300 है, अफगानिस्तान के पास 205 है, बांग्लादेश के पास 170, श्रीलंका के पास 75, नेपाल के पास 14 और भूटान के पास 2 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर है। यानी यहाँ पर अखंड भारत चाइना को बाजी मार देता, क्योंकि चाइना के पास 3000 लड़ाकू विमान है और हमारे पास तकरीबन 4000, जितने आज रशिया के पास है। अब यहाँ पर नेवी यानी नौसेना की बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अखंड भारत के पास एक बहुत ही बड़ी दरियाई सीमा होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसके लिए एक बड़ी नौसेना की जरूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से सबमरीन, फ्रिगेट्स जैसे नौसैनिक वाहनों की गिनती करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के पास 197 है, भारत के पास 295 है, बांग्लादेश के पास 90 है, श्रीलंका के पास 40, बाकी नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान के पास कोई भी दरियाई सीमा नहीं है, तो उनके पास एक भी नौसैनिक हथियार भी नहीं है। फिर भी अखंड भारत के पास 7200 जितने नौसैनिक हथियार होते हैं, जो रशिया और चाइना दोनों से ज्यादा है। तो यहाँ पर मतलब साफ है कि मिलिट्री पावर में अखंड भारत एक मजबूत और तगड़ा देश बनकर उभरता, जिसका सामना करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता। और दुनिया के बड़े बड़े देश भी भारत से आज जितनी दूरी बनाकर रखते हैं, उससे ज्यादा दूरी अखंड भारत से बनाकर रखते हैं। कोई भी देश कितना मजबूत है या उनकी मिलिट्री तय करती है कि उस देश की मिलिट्री कितनी मजबूत है, जो उस देश के डिफेंस बजट यानी रक्षा बजट पर आधारित है। तो उस हिसाब से अखंड भारत का रक्षा बजट बहुत ज्यादा है। आपको गिनती करके बताता हूँ। अफगानिस्तान का रक्षा बजट 115 करोड़ डॉलर, पाकिस्तान का 700 करोड़ डॉलर, भारत का 4700 करोड़ डॉलर, नेपाल का 21 करोड़ डॉलर, बांग्लादेश का 159 करोड़ डॉलर, भूटान का 1 करोड़ डॉलर और श्रीलंका का 150 करोड़ डॉलर का रक्षा बजट है। तो कुल मिलाकर 6000 करोड़ डॉलर का रक्षा बजट इस बड़े देश के पास होता। ऐसे में अगर अखंड भारत होता तो एक आपसी लड़ाई ना होती, जिस वजह से इस बजट को सरकार थोड़ा कम करके बाकी के पैसों का कहीं और इस्तेमाल करती, जैसे एजुकेशन, टेक्नोलॉजी या किसी और जगह पर। तो यहाँ पर देश को फायदा ही फायदा होगा। आप जरा सा भी बुरा मत मानना, क्योंकि यह सिर्फ एक कल्पना थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।